Okay, now I'll start. If I would name the technology that completely changed the 21st century, it would be artificial intelligence. Artificial intelligence is a part of everyone's life. That's why it is important that we understand the different concept of AI. With this in mind, we welcome in this tremendous AI workshop. Hi, this is Sunil Kumar Singh from Saga. Today we will discuss about AI, what is AI and what is the use of in different field, what is the history, these all we will discuss in this one session. Okay, so we and our team all will discuss about the AI. First, AI, artificial intelligence, means we know we are intelligent. Okay, so I'm going to start. First, you can see artificial intelligence. Then, what is artificial intelligence? Using the computer to solve the problems or make automated decision for tasks that, when done by the humans, typically required intelligence. These all machines, we are trying to make a machine that can work like a human. That is called humanoid. Okay, that is called humanoid. So we are going to start the history of AI first. The concept of AI goes back to the classical ages. Under Greek mythology, the concept of machines and mechanical men were well thought of. An example is Talos. Talos was supposedly a giant animated bronze warrior who was programmed to guard the island of Crete. Now let's get back to the 19th century. In 1950, Alan Turing proposed the Turing test. The Turing test basically determines whether or not a computer can intelligently think like a human being. The Turing test was the first serious proposal in the philosophy of artificial intelligence. 1951 marked the era for game artificial intelligence. This period was called game AI because here a lot of computer scientists developed programs for checkers and for chess. However, these programs were later rewritten and redone in a better way. 1956 marked the most important year for artificial intelligence. During this year, John McCarthy first coined the term artificial intelligence. This was followed by the first AI laboratory, which was set up in 1959. MIT AI Lab was the first setup, which was basically dedicated to the research of AI. In 1960, the first robot was introduced to the General Motors assembly line. In 1961, the first AI chatbot called Eliza was introduced. In 1997, IBM's Deep Blue beats the world champion Garry Kasparov in the game of chess. 2005 marks for the year when an autonomous robotic car called Stanley won the DARPA Grand Challenge. In 2011, IBM's question answering machine, Watson, defeated the two greatest Jeopardy champions, Brad Rutter and Ken Jennings. So that was a brief history of AI. Now guys, since the emergence of artificial intelligence in 1950s, we have seen an exponential growth in its potential. AI covers domains such as machine learning, deep learning, neural networks, natural language processing, knowledge base, expert systems, and so on. Now that you know a brief history of artificial intelligence. So we have seen the brief history of AI from where since the AI started, and in different fields we will use. So in small brief description about the AI field, we are going to show that one. Just see there. What is artificial intelligence? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है, तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम में लगा देते हैं, जिससे इन पर आज हम ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। इंसानों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनके कार्य करने की क्षमता, ताकि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे काम करता है, ये कितना जरूरी है, क्यों है, इसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। एक नया फील्ड अब सामने आया है, जिसे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं।
जो कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम ये है कि ऐसे इंटेलिजेंस मशीन बनाए जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो और जो खुद डिसीजन लेने की क्षमता वाले हो, जिससे वो हमारे काम और भी आसान कर सके। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिसमें मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम ज्ञान या नॉलेज को ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे कि जैसे हम इसका इस्तेमाल बहुत ही एफिशिएंसी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि ये पढ़ने और समझने योग्य होना चाहिए जो लोग इसे प्रोवाइड करते हैं। ये आसानी से मॉडिफाई करने योग्य होना चाहिए जिससे कि इसकी एरर्स को और आसानी से सुधारा जा सके। Okay, we have seen how AI will work in different. For more details, I would like to call my colleague Sajid Shukla to tell you about more AI. Okay. Hello students. So I would extend my thanks to Sunil sir that he has invited me for this orientation program. Now I will tell about you the three processes, okay, of the AI. First of all, in very brief, in very just 2 words, I will say that AI is the simulation of human intelligence. AI or artificial intelligence, we can say that it is a simulation of human intelligence processes by machines, especially a computer system. And there are 3 processes, okay. First is learning, second is reasoning, and third is self-correction. Okay, so we'll talk about this. So learning process, what do you mean by learning process? Learning process of a computer system or a machine deals with the acquisition of information and rules for using the information. Here, information or data is provided to machines along with the rules to process those information or data. Okay, machines or computer system follow these rules to process the information. इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम अगर है या कोई आपका मशीन है तो हम लोग उस कंप्यूटर सिस्टम या मशीन को डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं और हम लोग उसको रूल्स भी दे रहे हैं कि देखो भाई ये रूल्स हैं, इस रूल्स के हिसाब से आपको इस डेटा को या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है. तो दिस इज द लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग फेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. नाउ सेकंड इज द रीजनिंग प्रोसेस. Reasoning process enables the computer systems or machine to analyze the data or information and apply or using rules to reach approximate or definite conclusions. Okay, and it includes forward and backward reasoning. 2 तरह की reasonings होती हैं. जैसे आपने कंप्यूटर सिस्टम को डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया, अब वो प्रोवाइड कराने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उस जो रूल्स है उस रूल्स को वो उस डेटा पे अप्लाई कर रहा है. उस रूल्स को उस डेटा पे अप्लाई करने के बाद जो उसको रिजल्ट मिला है वो ये चेक कर रहा है कि जो रिजल्ट है क्या हमारे उम्मीद के हिसाब से सही है. अगर उसमें कमी रहती है, मान लीजिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 99% करेक्ट डेटा या करेक्ट रिजल्ट आए. ओके, कभी भी कंप्यूटर वर्ल्ड में हम लोग कभी 100% की बात नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी बात होती है 99.99%. तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि 99.99% आपका करेक्ट रिजल्ट आए, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आए. अगर वो नहीं आता, उससे कुछ कम रहता है, तो फिर हम लोग बैकवर्ड रीजनिंग लगाते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या कहीं डेटा में तो कमी नहीं है, क्या हम इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं क्या वो तो गलत नहीं है, या हमारे रूल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ये चीजें हम लोग देखते हैं और इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीजनिंग के हिसाब से हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड कराते हैं रिजल्ट. तीसरा होता है सेल्फ करेक्शन प्रोसेस. तो ये आप लोग अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको पता चल गया कि मेरा ये रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपको उम्मीद के हिसाब से कम मार्क्स आए, तो आप क्या करते हो, आप अपने ऊपर सेल्फ करेक्शन लगाते हो. आप कहते हो कि अच्छा मैंने इतना टाइम कम पढ़ा तो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा ज्यादा, मैंने नोट्स प्रॉपर नहीं बनाए. सेम गोज विद द कंप्यूटर सिस्टम. सेल्फ करेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स द रेक्टिफिकेशन इन द अप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन्स थ्रू द सर्टेन रूल्स using data or information as a fuel to reach the conclusion. Rectification is done in processing phase to provide more accurate result. Now, self correction is the automation process. जाहिर सी बात है, self correction जो है वो automation process है, which includes modification. Modification किस में include करता है वो, या तो rules में करेगा
या तो हमारे प्रोसेसिंग मेथड है उसमें करेगा, या तो फिर हमारा जो इंफॉर्मेशन या डेटा है कहीं हम लोग गलत डेटा तो नहीं दे रहे हैं वो उस पर करेगा। और उसके बाद वो एरर को डिटेक्ट करेगा, और एरर को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, आपका वो एरर को रिमूव करके एग्जैक्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। नाउ तो ये इसका मैं आप लोग को इसका एक फ्लो चार्ट बताना चाहूंगा, एक आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं मैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो यू आर वॉचिंग दिस स्क्रीन। तो ये स्क्रीन क्या बता रहा है कि पहला है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस आपका क्या है, इसमें आपका एक्विजिशन ऑफ रूल्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स है। वी आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रूल्स आर एक्वायरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स आर एक्वायरिंग द रूल्स फ्रॉम द एक्सपर्ट सिस्टम्स। ओके, तो दूसरा है आपका, देखिए मैं छोटा सा इमेज है जिसको मैं आपको डिस्प्ले करूंगा कि देखिए अगर एक्सपर्ट सिस्टम है, कोई एक्सपर्ट्स हैं, तो ये उसको वो रूल्स प्रोवाइड करा रहे हैं किसको, कंप्यूटर सिस्टम को। तो वो कंप्यूटर सिस्टम क्या कर रहा है, आपका रूल्स भी ले रहा है और आपका डेटा या इंफॉर्मेशन भी ले रहा है। उसके बाद दूसरा है आपका रीजनिंग। रीजनिंग क्या करता है, एनालाइजिंग द डेटा और इन्फॉर्मेशन। देखिए हम लोग को जो जानकारी मिलती है, हम लोग तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद के उस डेटा पे काम कर देंगे, हम लोग को देखते हैं ना कि डेटा सही है कि नहीं, डेटा सही नहीं है, या रूल्स हम लोग अप्लाई करेंगे और रूल्स और लॉजिक के हिसाब से हम लोग उस रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप एडिशन वाला प्रोग्राम तो रन नहीं ना करेंगे, उस पर आप मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम रन करेंगे ना। ओके, नाउ थर्ड है सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन क्या है आपका, एरर को डिटेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, रूल्स को डिटेक्ट करता है कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं है, और उसको गलती को डिटेक्ट करने के बाद वो उसको क्या करता है, उसका वो मॉडिफिकेशन करता है। ओके, तो एक स्मॉल वीडियो है जो आपको ये 3 प्रोसेस के बारे में बताएगा। लेट मी शो यू। लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाली जाती है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन पर रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करें। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंसर्ट किया जाता है कि वो उन पर बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। उसके बाद इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस का एग्जांपल क्या है। आप लोग देखिए, कोई भी लर्निंग या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप इसको ये देखते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड में ये कैसे आपका ये काम करता है। ठीक है, तो अभी कोविड-19 फेज हुआ था, आपको पता है, अभी भी चल रहा है कई सारा। तो उसमें क्या हो रहा है कि मेडिकल या हेल्थ केयर सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके एक फ्रंट रनर की तरह बिहेव कर रहा है, या एक हम लोग का बहुत जबरदस्त उसने हेल्प किया है। ओके, एआई इज यूज्ड टू डिटेक्ट द कोविड-19 पेशेंट्स और उनके हेल्थ कंडीशंस या सीटी स्कैन्स को एनालाइज करके वो तुरंत बता देता है विद इन 15 मिनट्स कि ये पेशेंट जो है आपका कोविड-19 का पेशेंट है या इसको नॉर्मल बीमारी है। वरना क्या होगा, नॉर्मल बीमारी वाले को भी लोग समझेंगे कि कोविड-19 पेशेंट है, ऐसा तो है नहीं। तो वो ये डिटेक्ट करता है कि कोविड-19 वाले पेशेंट कौन है और नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स कौन है, और उसका डिटेक्ट करने के बाद जो वो रिजल्ट देता है, उस रिजल्ट के आधार पे हम लोग उस पर दवाई या जो मतलब डॉक्टर्स हैं उस पर वो टीम मेडिकल टीम काम करती है। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ये 96% ये आपका करेक्ट रिजल्ट दे रहा था, 4% का ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसकी गलतियां थी। तो अब ये सेल्फ करेक्शन वाला फॉलो करके क्या कर रहा है, 96% को 99% की तरफ लाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो एआई आपका एक बहुत ही हेल्पफुल रहा है। एक छोटा सा स्मॉल वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को शेयर करूंगा। In this patient infected with the novel coronavirus, a CT scan can hold the answer. Whitening, unusual spots, or faint increases in lung density are all cues of COVID-19.
The signs are clear, but here's the problem. A doctor spends about 50 minutes analyzing one case. Luckily, with the help of AI, CT scans can be interpreted in 20 seconds with 96% of accuracy. So how does AI work? Let me explain. Convolutional neural network is an important branch of AI. The algorithm can automatically recognize clinical signs by combining through over 5,000 CT scans. Simply put, the algorithm learns new input just like children, except it is much faster and can be trained in a week. First, the image is automatically analyzed using a deep learning classifier to detect abnormalities. After that, lungs images are segmented, and finally, a massive extraction of texture filters is applied. With that, AI can instantly distinguish between the lungs of a patient with common viral pneumonia and that of a COVID-19 patient. AI can also directly calculate the number and size of lesions and determine how severe the case is. This move can boost the efficiency of double checks on diagnosis. ओके, तो इस वीडियो में आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस काम को 20 सेकंड्स में कर रहा था, जो डॉक्टर 15 मिनट या 20 मिनट लेते थे, 15-20 मिनट्स टू एनालाइज द सीटी स्कैन, और वो फिर इस कंक्लूजन्स पे आते थे कि नहीं ठीक है, ये आपका कोविड-19 पेशेंट है, लेकिन क्या करता है आपका एआई, विद इन 20 सेकंड्स वो आपको बता देता है। फिर बात आती है कि एप्लीकेशंस, हम लोग एआई को कहाँ यूज करते हैं। तो एक है आपका एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा है विजन सिस्टम, तीसरा है स्पीच रिकॉग्निशन जैसे आप लोग का गूगल आपका असिस्टेंट है, फोर्थ है आपका हैंड रिटन रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज, और उसके बाद गेमिंग में है, इंटेलिजेंस रोबोट्स है। तो ये सब इसके कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे ये एआई का एप्लीकेशन या जो एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। नाउ आई विल invite Vikas Ranjan sir to further elaborate AI and its other course. Thank you. Thank you, Satish sir. Good morning, students. Till now, I hope that you understand that what is AI. Now, I am giving the more description about the AI. As you know that AI is the process in which we just making the computer that think like human and work like human. But now we categorize it in basically two different sectors. The first is weak AI, that is also known as narrow AI, and second is strong AI. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम अभी तक AI जो बताए हैं, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच दो भागों में इसको मेनली हमने डिवाइड कर दिया। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आई एम गिविंग एन एग्जांपल that we have already developed some machines, some equipment that can work just like a human, but not completely like a human, but they are following the instructions of the human being and working according to that, like Apple Siri and Amazon Alexa. You better know that there is a speaker which is available on Amazon which name is Alexa, that follow our instruction. So I like, suppose I have given the instruction that say please sing a song about a particular situation, about a particular singer, then that is stored in that server of the Amazon Alexa, and the next time when I am in that mood, then I only say that I want to listen that song, then it's recognized that this type of song I want to listen. तो ये आपका वीक एआई में आएगा, जिसमें चैटबॉट्स भी हैं। बट अब हम लोग फर्दर स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ जा रहे हैं का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एआई में हम इससे डिफिकल्ट टास्क करवाना चाहते हैं। मतलब हमारा मेन एम है कि जस्ट लाइक ह्यूमन दे कैन टेक डिसीजन एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विदाउट द ह्यूमन इंटरफेस, बट इट इज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, इट विल कम फर्दर। अब इसमें हम एग्जांपल्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। एग्जांपल्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी में पहला जो है ऑटोमेशन आता है। इसमें इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर मशीन के बारे में बात करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें तो कार मेकिंग फैक्ट्री है, वहां पे एक पर्टिकुलर रोबोटिक्स आर्म है जो कि पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। तो उस तरीके से जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर मशीन को प्रोग्राम के थ्रू ट्रेन कर देते हैं और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट कैन वर्क।
And the second, machine learning. Machine learning is very important phase in that AI development. The machine learning is the science of getting the computer to act without programming. इसमें मशीन लर्निंग में स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मशीन लर्निंग में जब हम पर्टिकुलर हम प्रोग्रामिंग करते हैं ऐसे एआई की, तो हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें एआई की प्रोग्रामिंग हम लोग रखते हैं और प्लस उसकी जो हमारी जो कोडिंग होती है उसके इनपुट्स उनको जोड़ के हमारा जब प्रोग्राम रन करता है तो आउटपुट आता है। लेकिन अब मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन लर्निंग मतलब मशीन अपने से सीख रहा है। इस केस में हमारा क्या होता है, हम केवल उसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अपनी सिचुएशन बताएंगे और उसको अपना आउटपुट बताएंगे कि हम ये चाह रहे हैं। यानी कि हम इनपुट देंगे कि हम ये हमारे पास डेटा है और ये आउटपुट है जो कि हमें चाहिए। इन दोनों को मिला के वो प्रोग्राम खुद डेवलप कर लेगा और ये दैट इज नोन एज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में हम 3 फेजेस होते हैं, इसमें हम इनको 3 फेजेस में बांटते होंगे। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें आपको हम ये तीनों कैटेगरी बता रहे हैं। मशीन लर्निंग आप समझ गए होंगे, जिसमें मशीन खुद से अपना प्रोग्राम डेवलप कर लेता है, वो मशीन लर्निंग होता है। अब सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज का मतलब होता है कि हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करे, इसको सुपरवाइज लर्निंग करते हैं। इन विच डाटा सेट्स आर लेबल्ड सो दैट पैटर्न कैन बी डिटेक्टेड एंड यूज्ड टू लेबल न्यू डाटा। अब सुपरवाइज लर्निंग हो गया। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, मतलब कि हम अपना इंस्ट्रक्शन नहीं देते, वो अपने से वो काम करता है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वो जो है अपने से काम करता है, साथ साथ वो पिछले अपने वर्क से एक्सपीरियंस लेके आगे का काम डिसाइड करता है। तो इसमें आपको बेसिक डिफरेंस अगर समझाने के लिए हम बात करें तो एक एग्जांपल हम आपको ले सकते हैं। सुपरवाइज लर्निंग मींस, अगर सपोज करिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि हम किसी भी मशीन को फ्रूट्स पहचानना बता रहे हैं सपोज, तो हम उसको एक फ्रूट हाथ में लेके दिखाएंगे दैट इज दिस फ्रूट इज एप्पल, देन दैट रिकॉग्नाइज दिस राउंड शेप्ड फ्रूट, and when I am taking the banana, then that shape is different from the apple, then machine recognizes these two shapes differently, then आगे ये जो है ये सुपरवाइज लर्निंग है, मैंने इसको बता दिया, then हमने और उसको फ्रूट्स दिखाएंगे जब हम, तो वो अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन से शेप का कौन सा फ्रूट है, वो उसको डिटेक्ट करके सेपरेट कर देगा। बट इन अनसुपरवाइज लर्निंग we are not giving any idea about the shape and the color, then machine self detected the shape as well as color, means now this time machine detect all the dimensions of differentiation, मतलब सारे डिफरेंट जो उसके कंडीशंस है उसको डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग करेगा, मतलब शेप भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है, जो जो उसको दिखेगा। यानी कि अब वो राउंड शेप में एप्पल को अलग करेगा, ऑरेंज को अलग करेगा, ठीक है, उसी तरीके से बनाना को अलग करेगा और किसी दूसरे फ्रूट को अलग करेगा। ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया। और उसके बाद इसमें हमारा ह्यूमन इंटरफेस बहुत ही कम रहेगा। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये जो एक्सपीरियंस होगा उसको आगे के लिए इन फ्यूचर अगर उसको कोई इस तरह का टास्क दिया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को सिचुएशन को अडॉप्ट करेगा और प्रोग्राम को चेंज कर लेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आएगा मशीन विजन। मशीन विजन में बेसिकली हम लोग आते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रोग्राम जो है विजन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब इसमें कैमरा की बात आ जाती है, कैमरा से विजुअलाइज कर लेता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है और डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करके उसको उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेना होता है, प्रोग्रामिंग करनी होती है। इसमें आपका जो भी कैप्चरिंग होती है डेटा की वो जो होता है कैमरा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और उसमें वो पैटर्न मैच करता है और सारे जो डिटेक्शन होते हैं उसमें कैमरा के थ्रू मशीन विजन होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा एनएलपी, इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वो अपने से सेल्फ डिसाइड कर लेता है हमारे जो है जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, उसमें वो सेल्फ डिसाइड कर लेता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बेसिकली 3 चीजें हम बता सकते हैं कैसे ये एनएलपी काम करता है। जैसे जीमेल है, तो जीमेल में हमारा अगर कोई भी ईमेल आता है तो वो अपने से डिसाइड कर लेता है कि वो स्पैम है कि नॉट स्पैम है। मतलब स्पैम होगा तो वो स्पैम फोल्डर में हो जाएगा। स्पैम आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, स्पैम का मीनिंग होता है कि जो अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्स से अनवांटेड मेल्स बल्क में आते हैं वो स्पैम होते हैं। अगर वो इनबॉक्स में भी आने लगे तो यूजर कंफ्यूज होने लगेगा कि कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्पैम है, तो वो अपने से डिसाइड करके स्पैम में भेज देता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल आपको बताने, जैसे अगर आप YouTube पे कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि YouTube पे अगर हम ये सर्च करें तो उसी से रिलेटेड चीजें आपको सजेशन में आने लगती है। या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर अमेजन पे आपने कोई चीज देखा तो नीचे लिखा रहेगा कि वो ऑल्सो वांट्स टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑल्सो, यानी कि आपको उसी तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है वो आपको सजेस्ट करने लगेगा, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे।
इससे क्या होता है कि हमारा जो है हमें वो फॉलो करने लगता है और हमारी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्राम को डेवलप कर लेता है। इसके बाद जो है हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन आता है। पैटर्न रिकॉग्निशन में जैसे कि हम अंदर जाते हैं, कहीं पे बायोमेट्रिक देते हैं, फेस, उस तरह के पैटर्न्स होते हैं, उसके हिसाब से पैटर्न रिकॉग्निशन होता है। और लास्ट हमारा फील्ड है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में आप जैसे जानते हैं कि एडवांस रोबोटिक्स हमारे साइंस टेक्नोलॉजीज, स्पेस टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि हमें रोबोट्स की जरूरत पड़ती है। उसके जो प्रोग्रामिंग उसमें हो रही है, ये अभी अंडर प्रोसेस है। फुल्ली रोबोटिक्स जो है हमारा अभी डेवलप नहीं हुआ है। इसमें जो है अभी हमारा काम चल रहा है और ये जो हमारा लास्ट फेज है जिसमें कि अभी काम चल रहा है, अंडर डेवलपमेंट है। अब इसके बाद मैं आपको स्टूडेंट्स एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से प्रकारों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन उनमें से जो सबसे मुख्य है वो है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जनरलाइज्ड मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिसमें कि ये समय आने पर अगर इसे कोई डिफिकल्ट सा टास्क दिया जाए तो ये आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। अब बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उदाहरण की। पहला है ऑटोमेशन, दूसरा है मशीन लर्निंग। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर बिना प्रोग्रामिंग के काम करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जिसमें प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को ऑटोमेशन किया जाता है। तीसरा है मशीन विजन, एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को देखने के काबिल कर सकते हैं। मशीन विजन में कंप्यूटर विजुअल इंफॉर्मेशंस को कैमरा की मदद से कैप्चर करती है और एनालाइज करती है। इसके साथ साथ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सेशन और डिजिटल सिग्नल भी करती है। चौथा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से किसी इंसानी भाषा को मशीन के द्वारा समझा जाता है। उदाहरण Okay, students, thank you. Now I am inviting Ratnesh sir for giving the uses of AI. Hello students, good morning. Thank you Vikas sir, Sunil sir and Satyajit sir. I hope you are better understand about the AI. What is the AI? What is the function of the AI? And in which fields we are using the AI? आपने देखा होगा अभी सुनील सर ने, सत्यजीत सर ने, विकास सर ने आप लोग एक्सप्लेन किया होगा कि हम व्हाट इज AI हमारा क्या है, AI को हम लोग कैसे यूज करते हैं और in which fields we are using the AI. But now we have to discuss the some various fields कि हम किस किस fields में हम लोग AI को और better way में यूज कर सकते हैं. So for that, just I'll show you a video. Then you can understand about the AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस, तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर्स की मदद से स्टूडेंट्स घर में बैठे ही सभी चीजों का हल ढूंढ रहे हैं। इससे उनका पढ़ने में इंटरेस्ट भी काफी बढ़ रहा है। चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस, पांचवा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉ, छठा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मैन्युफैक्चरिंग। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हम लोग AI को कैसे और किस फील्ड में हम यूज करते हैं। सो जस्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं AI यूज इन द हेल्थ केयर। अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में, AI यूज इन द बिजनेस, AI यूज इन द एजुकेशन फील्ड, AI is also used in the finance, AI also used in the law sectors, and AI is also used in manufacturing. अगर हम फर्स्ट अगर बात करते हैं तो AI in the healthcare, in the healthcare सेक्शन, जस्ट अभी आपने देखा होगा इस कोविड-19 के थ्रू हम लोग कैसे इस डिजीज को कैसे हम लोग AI को यूज कर रहे थे। किसी भी अगर CT स्कैन को करना होता है तो अगर आप किसी डॉक्टर्स को यूज करते हैं, इट विल टेक द सम टाइम, बट अगर हम AI के थ्रू विद इन सेकेंड्स, विद मिनट्स इस टास्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं।
in the sectors business की अगर हम बात करते हैं, in the field of the business, अगर हम बिजनेस की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस के सेक्टर्स में आपने देखा होगा कि कैसे हम अपने ग्रोथ को, हमारे जो सेल्स हैं उन सेल को हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं, उसके प्रोसेसिंग क्या है, उसकी गेनिंग क्या है, एंड ऑल्सो वी ऑल गेट द डेटा एनालिसिस, कैसे हम किसी डेटा को एनालाइज करते हैं विद द कस्टमर, एंड ऑल्सो नाउ डेज आपने देखा होगा कि हम कैसे एक फीडबैक, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं इन द बिजनेस वी कैन ऑल्सो गेट द फीडबैक फ्रॉम द थ्रू द एआई। अभी जैसे आप कैसे फीडबैक की बात करते हैं, अगर आप कभी किसी सिस्टम्स को ओपन करते हैं, उनका जो चैट बॉक्स ओपन होता है, व्हेन यू फिल द इंफॉर्मेशन, आप उनकी इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हैं एंड देन यू गेट द इन बेनिफिट्स फ्रॉम देयर साइड्स। अगर उसके बाद हम बात करते हैं किसी और फील्ड्स की, तो एजुकेशन के फील्ड में, इन द एजुकेशन फील्ड हम बहुत पहले से इसको यूज कर रहे हैं। एजुकेशन फील्ड में रोबोटिक्स आपने पढ़ा, रोबोटिक्स आपने देखा है, और वेदर फोरकास्टिंग का है, ये सारी चीजें हम किससे रिलेटेड, हमारे एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड है। एंड अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, तो बैंक कैन यूज एआई टेक्नोलॉजी टू स्टे, बैंक टेक्नोलॉजी टू स्टे इन द compliances and identify fraud. Artificial intelligence helps the financial services companies make money by enhancing the accuracy of trading and different kinds of the things when using the banks. So now students, during the 40-minute sessions, the 1 minute are the left. So now our all team members, our HOD sir, Satyajit sir, Sunil sir, and Vikas sir. So Okay, I think students, you have got a lot of things about the AI. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye. thank